Hello everyone. Hello my amazing action takers. Yes, I'm pretty much live here. Let me just check some settings. Okay. So all of you who are watching me here, just give me a favor. If you are watching this particular Coaches Talk Show session live, please type live in the comments. But if you are watching the replay, please type replay in the comments. Let me see if you are already here with me. Okay. All right. Okay, so you can do the comments in the comment section because I am directly live streaming from Zoom call, so it might be possible that I won't be able to see your comments. Last time we had a lot of questions, but because of this, third party live streaming services, we were not able to answer your questions. But we really give you gratitude to being on our show every week and sharing the positive feedbacks with us. So, those of you who have already joined, thank you so much. Please stay till the end because we have a very amazing session coming up in just a moment. Okay? Okay, let me see any comment if I get today. Your no. I have checked that I'm pretty much audible and visible both. If you feel that you're not able to see me or if there is any kind of audio problem, please DM me directly. If I can see, then I will surely reply back. Okay. Thank you. Let's begin. So, let me start with the introduction of this show. So this is Coaches Talk Show season 3, season 1 and 2 I have done on Instagram. If any one of you missed those seasons and speakers, please go through my YouTube channel Coach Neha Garg where you can watch all the previous episode. Also, in this season 3, we have already done 4 episodes. Now we have on our 5th episode today where we have a very special guest. And before I invite the guest and speak about them, I would like to introduce myself to those who are watching this show for the first time. My name is Neha Garg and I'm a digital skills coach for women entrepreneurs, helping them to raise their confidence in handling digital platforms and technology. So now that I'm expanding the area of where I help in other field as well. So keep in touch. It might be possible that in upcoming future you will get some information which you can use in your life and business both. Now, it was about me, but today is not my day. Today is the day of listening to our speaker. So, how many of you are ready? Type me in the chat box, in the comment box, which you can see. Okay. Oh, thank you so much, dear. Now, let me do a simple setting here. Yes. Okay. So, without any further delay, let's start our let's start with the introduction of our speaker. And he is, I would say, having a lot of inner wisdom which I cannot see in other people nowadays. I won't call him with his name because I love to call him Guruji because of the knowledge he has. Okay, and that because of that, I invited him today, and you know, um, by way, you know being a very busy person, he was able to take out some time and accepted the invitation to come on the show today. So as a respect, I want all of you to be till the end so that you can get the wisdom from him. All right, so he is a mantra sadhana trainer. He is guiding women especially to harness the power of sacred chants for transformation, the clarity, and the success. Now, for me also, this concept is new, but let's learn from him to understand that how it can really help in transformation. Through his deep understanding and the practice of what he does, he has already helped a lot of people to unlock their inner potential and balance in life. So I respectfully call him on virtual stage to uh, let us understand that how this work which he do can help us to find the peace in life and the balance which some we have forgotten somewhere. So let's welcome Guruji to the virtual stage. You can switch on your camera and you can join us. Welcome to the show. नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? Namaskar. Thank you so much, first of all, for joining me for Coach's Talk Show today. And we would love to.
like hear your introduction from your mouth because I don't want to take your name today. Thank you so much. And I would like to proceed further in Hindi only Yes, yes, because बिल्कुल. जब हम गुरु शिष्य परंपरा से आते हैं तो एक बात कही जाती है कि स्टारबक्स की कॉफ़ी चाहे कितनी ही अच्छी और महंगी क्यों ना हो, लेकिन कुल्हड़ वाली अदरक की चाय का जो स्वाद है वो अपनापन देता है। तो इस कारण बिल्कुल, से हिंदी भाषा में अपना जो पन है वो कहीं भी और नहीं मिलता। बिल्कुल. जी. मैं अपना इंट्रोडक्शन सिर्फ इतना सा देना चाहूँगा कि उस इष्ट देव का एक साधक हूँ, और हमें सिर्फ इतना मालूम है कि जब तक साधना होती रही होगा वही जो होगा सही। और ऐसे ही सही होते होते 1.5 लाख वेमेन को हम लोग पढ़ा चुके हैं, सिखा चुके हैं। मेरे पास 156 प्लस सर्टिफिकेशंस हैं, कैलिफोर्निया से सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट से लेकर साइकोलॉजिस्ट तक मेरे पास डिग्रीज हैं। टोनी रॉबिन्स के अंडर सर्टिफाइड होने से लेकर आश्रम के दीक्षित शिष्य होने से लेकर। लेकिन जब ये सारी चीज़ें, सारे लॉजिक्स ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद जो चलता है वो कुछ ऐसा सिस्टम है जो लोगों के लॉजिक्स के बियॉन्ड चलता है। और उसी सिस्टम को हर घर पहुंचाने की हमारी कोशिश है कि हर घर एक साधक हो। क्योंकि यदि हर एक घर एक साधक होता है, एक गुरु शिष्य परंपरा का पालन होता है, तो कहीं ना कहीं दोबारा हमारे ऋषियों की वो परंपरा, ऋषियों के वो संस्कार, वो आचरण, वो व्यवहार, वो दोबारा लौट करके आता है। और हर एक व्यक्ति के अंदर चमत्कार करने की क्षमता है। ऐसे चमत्कार जो शायद आप लॉजिकली बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन वो तरीके जब आप सीख लेते हैं तो आप कहते हैं कि जो अब मैं सोच रहा हूँ वो हो रहा है, जो बोल रहा हूँ वो हो रहा है, जो देखना चाहता हूँ वो दिख रहा है, जैसा सोच रहे हैं वैसा दूसरों के साथ हो जा रहा है। तो इसी कारण से हम कहते हैं कि जब तक साधना होती रही होगा वही जो होगा सही। बिल्कुल सही, और कितनी गहरी बात आपने कही कि हम जो सोचते हैं वो हो जाता है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही सच है. तो बहुत अच्छी बात कही आपने कि पहले जो एक गुरु शिष्य परंपरा थी उसको कहीं ना कहीं हम खोते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये कुछ और बनता जा रहा है. बट कहीं ना कहीं लोगों के मन में अभी भी यही है कि हम इस परंपरा को दोबारा अपनाएं, और किस तरीके से हम एक ऐसा संसार बनाएं जिसमें लोग ये बात समझ सकें कि एक्चुअल में जो एक स्टूडेंट होते हैं, शिष्य होते हैं, उनको क्या-क्या अभ्यास करने होते हैं, क्या-क्या उन्हें सीखना होता है, और किस तरीके से उसके साथ अपना जीवन जीना होता है. हम लोग सोचते हैं कि हम ये सीख लेंगे तो शायद हम थोड़े बड़े हो जाएँगे, और शायद जो दूसरा सीख रहा है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा. बट इसमें बहुत ही जैसे मैं बोलूँगी गहरा कॉन्सेप्ट छुपा है. तो आप जो अभी भी सिखाते हैं, आपने उसकी शुरुआत कहाँ से की? क्या चीज़, क्योंकि मतलब जब हम छोटे होते हैं ना तो स्कूल में ज़्यादातर कोई पूछता है आप क्या बनना चाहते हो बड़े होके? तो कोई भी ये नहीं कहता कि हम ट्रेनर या कोच बनना चाहते हैं। ज़्यादातर डॉक्टर, इंजीनियर यही बनने के बारे में कहते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपके मन में आया, आपने सिखाना शुरू किया, तो कहाँ से शुरुआत हुई वो आप बताना चाहेंगे? हाँ, मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ना 12 साल की उम्र में चालू किया था। हुँ, और उसका एक मेजर कारण ये था कि 17 साल तक मैं बीमार था। कभी एस्मा, कभी माइग्रेन, कभी पैरोनाइकिया, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। मुझे नियर डेथ एक्सपीरियंस भी हुआ है कि ऐसी बीमारियां भी हुई हैं जिसमें डॉक्टर ने 15 दिन जीने को दिए हैं। उसके बावजूद एक चीज़ दिमाग में थी कि जीवन में हर चीज़ की क्लैरिटी होना, यानी कि यदि आप करियर की बात करें तो करियर में स्कोप कैसे कहलाते हैं? महीने में बैंक अकाउंट में जो पैसे आ रहे हैं, असल में लोग उससे आपको नापते हैं कि आपका करियर सक्सेसफुल है या फेलियर है। तो ये बातें, वो क्लैरिटी बहुत पहले आ गई थी जीवन में। तो मुझे था, कोई कह रहा है कि भगवान की पूजा करने से, कुंडलिनी जागृत करने से पैसे आए हैं, और कोई कह रहा है कि नहीं, मैंने बहुत मेहनत की तब जा करके पैसे आए। तो मुझे वो डिकोड करना था कि यदि पुखराज पहनने से पैसे आ जाते हैं तो फिर मैं ये कैट की मैथ्स पढ़ना बंद कर दूं और सीधे सीधे पैसे आ जाए। क्योंकि मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहाँ फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सीनियर पोजीशन, 3 सिस्टर्स, एक डॉक्टर, एक सीए, एक पीएचडी, और मेरे 92% मार्क्स 12th स्टैंडर्ड। मुझे कार्डियोलॉजिस्ट बनना था जहाँ पर मेरे पास 80% स्कॉलरशिप थी, लेकिन सिस्टर को देखा हुआ था तो वैसा रूटीन नहीं चाहिए था जीवन का। हुँ, लेकिन मालूम नहीं था कि कार्डियोलॉजिस्ट जो बनने की चाहत थी वो ऐसे पूरी होगी कि लोगों के लिए दिल के डॉक्टर तब भी बन जाएंगे। हुँ, वहाँ से
ये साइंस सीखना चालू किया। इसके पीछे ऑकल्ट में जितने भी कोर्सेज हो सकते थे, साइकोलॉजी हो सकती थी, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स, मेटाफिजिक्स, एनर्जी मेडिसिन, क्वांटम रेजोनेंस टेक्निक्स, एटॉमिक मॉलिक्यूलर थ्योरीज, कि एक्चुअल में पूरे सृष्टि में ये चीज़ें काम कैसे कर रही हैं। जब उस लॉजिक को समझ लिया, आश्रमों में पहुंचे तो गुरुओं ने कहा कि मुखर्जी साहब, भगवान को तो आपको मानना ही पड़ेगा। जी जी। मैंने कहा मैं नहीं मानता। तो उन्होंने कहा लॉजिक से अपना गला भर लो, जिस दिन भर जाए उस दिन नारद पुराण का जादू सिखाएंगे। हाँ। ओके। फिर वहां से नारद पुराण पढ़ा, छठ दर्शन पढ़े, दार्शनिक दर्शन पढ़े, भैरव तंत्र पढ़ा, काल भैरव तंत्र पढ़ा, वहां से शिव पुराण पढ़ा। वहां से चीजें समझ में आई कि कैसे ये सारा सब कुछ जो हम साइंस बोल रहे हैं, वो साइंस तो बहुत पुराना है। जो जी। हमारा वैदिक साइंस है वो सबसे ज्यादा एडवांस वैदिक साइंस है। ओके। कारण यदि आज अभी मैं आपको कहूं कि भगवान से जुड़ने का, अक्सर हम सुनते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। हम्म। मैं आपसे छोटा सा सवाल करता हूं, देर क्यों है? लोगों की खुद की बनाई धारणा है ये सारे शब्द जो हम बोलते हैं। यदि आपके पास उनका फोन नंबर ही नहीं है तो फोन लगेगा कैसे? सही बात है बिल्कुल। और वो किसी ने दिया नहीं है। आज यदि हम बात करें कि आपके एंसेस्टर्स यानी कि आपके दादा परदादा होंगे, पूर्वज होंगे, हम्म। और मेरे पूर्वजों पर चलते हैं। हम्म। ये मानते हैं मेरे पूर्वज हैं और ये मानते हैं आपके पूर्वज हैं। हम्म। आपके पूर्वजों के पूर्वज पर गए, मेरे पूर्वजों के पूर्वज पर गए, आपके पूर्वजों के पूर्वज पे गए, उनके पूर्वजों पर गए, फिर यहाँ आपके पूर्वजों के पूर्वज पर गए, यहाँ मेरे पूर्वजों के पूर्वज पर गए। क्या एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां हमें मालूम पड़ेगा कि आप और मैं एक ही परिवार से हैं? बिल्कुल। क्योंकि और हाँ जी, प्लीज कंटिन्यू। इसी ट्री ऑफ लाइफ में यदि हम ऊपर चलते चले जाएं तो साइंस ने हमें कहा कि हम तो आदि मानव थे, चिंपैंजीज थे। वहां से और ऊपर गए तो हमें क्या मिलेगा कि हम स्पीशीज थे। वहां से पहला लिविंग सेल मिलेगा, जो पहला सिंगल न्यूक्लियर सेल था। अब उसके अंदर डीएनए नाम की एक चीज थी। जब नासा के साइंटिस्ट से पूछा गया कि ये डीएनए आप बना सकते हैं क्या, उन्होंने कहा बना नहीं सकते, हम कॉपी कर सकते हैं, क्लोन कर सकते हैं। तो हमारे धर्मगुरु ने कहा क्लोन नहीं करना है, नया बनाना है। और ये बात चालू क्यों हुई? क्योंकि हमारे साइंटिस्ट ने कहा कि सब कुछ केमिकल है, सब कुछ साइंस है। हम्म। धर्मगुरु ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ भगवान का बनाया हुआ है, सृष्टि उनकी बनाई हुई है। हम्म। तो साइंटिस्ट ने जवाब बड़ा सुंदर दिया। धर्मगुरु ने कहा ये पानी किसने बनाया? तो वो कहते हैं गुरुवर, इसको टेस्ट ट्यूब में ले जाकर के टेस्ट करें, H2O, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल मिलेगा, सब केमिकल है। तो उन्होंने पूछा फिर ये पेड़ पौधे किसने बनाए? उन्होंने कहा इसको भी गुरुवर ले जाकर लैब में टेस्ट कराएं, कैरोटीनॉइड्स मिलेगा, एंथोसाइनिन्स मिलेंगे आपको, ये सब कुछ केमिकल है। पेड़ पौधे सब कुछ केमिकल है। कहते हैं अच्छा फिर ये पहाड़ किसने बनाए? कहते गुरुवर इसको भी ले जाके आप टेस्ट कराएं, कैल्शियम डाइऑक्साइड मिलेगा, सिलिका मिलेगा, सल्फेट मिलेगा, इसमें कुछ भी आपके ईश्वर का बनाया नहीं है, सब केमिकल है। तो कहते हैं बहुत सुंदर। तो ये जो पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर डीएनए नाम की एक चीज है, इसको आप बना सकते हैं क्या? कहते हैं बना नहीं सकते, कॉपी कर सकते हैं। तो वो कहते नहीं बनाना है। कहते बना तो इसलिए नहीं सकते, पृथ्वी के चारों ओर कोई कॉस्मिक ऊर्जा नाम की ऊर्जा है, उस ऊर्जा से ये पहला कण आया है और ये पूरी सृष्टि उस कॉस्मिक एनर्जी से ही बनी है। ये सुनते ही हमारे धर्मगुरु मुस्कुराने लगते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम्हें घर पे क्या कह के बुलाते हैं? प्यार से कुछ तो बुलाते होंगे। कहते हाँ जॉन। कहते जॉन, जैसे तुम्हें प्यार से जॉन बुलाते हैं, वैसे मैं अगर इस कॉस्मिक ऊर्जा को भगवान श्री कृष्ण बुलाऊं तो तुम्हें कोई आपत्ति है क्या? मेरे दोस्त उसे भगवान श्री राम बुलाए, कोई और उसे शिव बुलाए, तो तुम्हें कोई आपत्ति है क्या? मैं भी तो यही कह रहा हूं कि हर एक कण कण में वो बसा हुआ है। तुम भी कह रहे हो कि पूरी सृष्टि का निर्माण उसी ऊर्जा से हुआ है। तो वहां से हमें समझ में आता है कि कॉस्मिक एनर्जी ही सृष्टि के रचयिता है। वहां से पहला, पहले से दो, दो से चार, चार से आठ, और आज हम इतने करोड़ों की जनसंख्या है। तो क्या मैं यहां बैठा इंसान पहले से आपसे कनेक्टेड हूं या नहीं?
तारे तो डली हुई हैं। बिल्कुल। दिक्कत यह है कि जब हम रिजॉर्ट में जाते हैं तो वहाँ एक इंटरकॉम लगा होता है जिसमें आप कमरे में आपस में बात कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए रूम नंबर मालूम होना ज़रूरी है। हम्म, अब दिक्कत इतनी सी है कि हम उस ईश्वर से भी जुड़े हैं और हम पूरी सृष्टि में हर एक व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे पास रूम नंबर नहीं है। अब या तो हम रूम नंबर पता करें सबका, या फिर उस रचयिता से डायरेक्ट जुड़ जाए। अब वो रचयिता से जुड़ा कैसे जाए? उसके सिस्टम हमारे शास्त्रों में और ग्रंथों में है। वहां से मंत्र जाप का कॉन्सेप्ट आया कि यदि आपको ईश्वर के साथ जुड़ना है तो मंत्र में दो तरीके के जाप होते हैं, एक मंत्र जाप और एक नाम जाप। मंत्र जाप वो है जब आपको कोई रिजल्ट क्रिएट करना हो और उसके लिए आप जाप करें, जैसे कि महामृत्युंजय जाप आयु वृद्धि के लिए या कर्मों को काटने के लिए। खुद की ऑरा प्रोटेक्शन रक्षा के लिए राम रक्षा स्तोत्र का जाप। खुद का कॉन्फिडेंस या ऑरा बूस्ट करने के लिए हनुमान चालीसा का जाप। तो जब किसी रिजल्ट को क्रिएट करने के लिए जाप किया जाए वो मंत्र जाप कहलाया। लेकिन हमारा पर्पस था अपने ईश्वर से जुड़ना, तो उसके लिए नाम जाप किया जाता है, अपने ईश्वर के नाम का जाप। अब लोग कहते हैं किसका करें? 33 कोटि देवी देवता हैं, हम तो डिपार्टमेंट चलाते हैं। पैसे चाहिए हो माता लक्ष्मी, प्रोटेक्शन चाहिए हो हनुमान जी, ऑब्स्टेकल आ जाए तो गणेश जी। ट्रू, यस, सही कहा आपने। तो वहां से फिर कॉन्सेप्ट आता है इष्ट देवता का। कि आपके पास इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर ये सारे इतने सारे फॉलोअर्स हैं, इतने सुंदर सुंदर लोग हैं। किसी के पास 500 तो किसी के पास 5,000, किसी के पास 50,000। लेकिन इन सारे फैंस और फ्रेंड्स के अंदर आपको मालूम होगा कि एक कोई सदस्य ऐसा है जिसको यदि आप इमरजेंसी में रात को 3 बजे भी याद करें तो वो 5 मिनट में आपके घर के गेट के सामने खड़ा होगा। ऐसा एक व्यक्ति सभी के जीवन में होता है, या तो जीवन साथी होता है, परिवार का कोई सदस्य होता है, मामा चाचा फूफा कोई तो होता है, या कोई करीबी दोस्त होता है। वैसे ही इन 33 कोटि देवी देवताओं में से जब हम वो एक चुन लेते हैं उसे इष्ट देवता कहा जाता है। कलयुग में दो ही देवता हैं जिनके पास सारी सिद्धियां और सारी निधियां हैं, जिनमें से पहले आते हैं भगवान श्री गणेश और दूसरे आते हैं भगवान श्री हनुमान। इन दोनों में से यदि किसी एक को अपना इष्ट बना लिया जाए और इनके नाम की एक माला जाप कर ली जाए तो होगा क्या? मान लेते हैं आज आपने मेरे साथ ये पॉडकास्ट इंटरव्यू किया और उसके बाद मेरे साथ कनेक्ट में नहीं है। अचानक 1.5 साल बाद आप मुझे रात को 12 बजे मैसेज करते हैं, आई एम इन इमरजेंसी, आई वांट टू टॉक टू यू। क्या मेरे पास से रिप्लाई आएगा? क्या मेरी टीम रिप्लाई देगी? आंसर इज नो। लेकिन यदि आप रेगुलर कनेक्ट में हैं, होली दिवाली बर्थडे विश कर रहे हैं, आपका काम कैसा चल रहा है, मेरा कैसा चल रहा है, बातचीत कर रहे हैं, रेगुलर कनेक्ट में हैं, क्या अब आप वो मैसेज 12 बजे करते हैं इमरजेंसी में किसी भी दिन तो क्या आपको रिप्लाई मिलता है? आंसर इज यस। यस। तो वो डेली की आपकी जो माला है ना, उनके साथ डेली की हाय हेलो है। ओके। वरना अचानक से आप किसी दिन कहते भगवान मदद कर दो तो वो भी कहते हैं अच्छा काम पड़ा तो मेरी याद आ गई। बिल्कुल सही बात। तो भगवान के घर देर क्यों है? क्योंकि हमारी रोज की हाय हेलो नहीं है। फिर लोग कहते हैं क्या इसमें कोई नियम लगता है? नियम सिर्फ इतना सा है कि एक समय पर करना चाहिए। हम्म। क्यों एक समय पर करना चाहिए? उसका कारण ये है, माने कि आपने कभी टीवी सीरियल देखे हैं? हाँ जी। देखे हैं? आदत बन जाती है एकदम। उसका एक बहुत चला था ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, इतने लोग फैन थे उसके। चलिए बहुत ही सुंदर, मानते हैं क्योंकि सास भी कभी बहू थी। किसी दिन तो उस चैनल पर सुबह 9 बजे आता है, अगले दिन दिन को 3 बजे आता है, किसी दिन दिन में 1 बजे आ जाता है, किसी दिन शाम को 4 बजे आ जाता है, किसी दिन रात को 9 बजे आता है। कितने लोग हैं जो अपना समय निकाल करके उसे देख पाएंगे? समय निर्धारित करना जरूरी है। ताकि लोगों को मालूम पड़ सके कि इस समय उससे जुड़ना है। ऐसे ही जब हम जाप करते हैं तो हमें सृष्टि को, सृष्टि के रचयिता को बताना होता है कि ये निर्धारित समय है जब मैं चाहता हूं कि मैं आपसे जुड़ूं और आप मुझसे जुड़ें। तो पहले के जमाने में घड़ियां तो थी नहीं, पहर थे। तो ये जो ब्रह्म मुहूर्त का कॉन्सेप्ट है कि इतने बजकर इतने सेकंड और इतने मिनट पर, ऐसे तो कुछ था ही नहीं पहले। पहले तो पहरों के हिसाब से चलता था। हम्म, वो क्यों लाया गया कॉन्सेप्ट? क्योंकि आरईएम स्लीप,
ये आपका जो सिस्टम है 5 REM स्लीप होती है 45-45 मिनट की। जब वो 5 REM स्लीप कंप्लीट होती है तब जाकर के आपके ब्रेन में से पुराना डेटा डिलीट होता है और नए के लिए आप तैयार होते हैं। वो 5 साइकिल पूरी होने के बाद जब आपका दिमाग जागता है तो वो डेल्टा वेव्स में रहता है, यानी कि जो समाधि की स्टेज होती है। तो यदि कोई व्यक्ति रात को 9 बजे सो जाए तो वो 5 REM स्लीप कंप्लीट करके करीब करीब 3:30-4 बजे के करीब वो जागेगा और उस समय वो उसके वेव्स रहेंगी। उसका पूरा का पूरा अलाइनमेंट नेचर के साथ भी हो रहा है, क्योंकि ठीक उसी हिसाब से सूर्य देवता गायब होकर के उसी समय बाहर निकल रहे होंगे। जब वो उस अलाइनमेंट में काम करेगा तो वो सृष्टि के अलाइनमेंट में आ गया, तो उसके दिमाग में, लोग कहते हैं मैंने सोचा, आपके दिमाग में, मस्तिष्क में वो सोच का बीज आया कहाँ से? जो कहते हैं कि हम कुछ नहीं मानते, क्योंकि मैं भी उन्हीं में से था जो कुछ नहीं मानता। तो आपके दिमाग में जो आपने सोचा करने के लिए, वो सोच का बीज कहाँ से आया? दो तरीके के सोच होती है, एक बाहरी सोच होती है, एक आंतरिक सोच होती है। बाहरी सोच जो आपने किसी और से सुना, पढ़ा, देखा, कहीं से आपने सोचा हम भी कर लेते हैं, वो तो 99% चीजें हम वैसे ही कर रहे हैं। लेकिन वो 1% जो आंतरिक सोच है, वो आंतरिक सोच आई कहाँ से? उसका सोर्स क्या है? जब आप वो चीजें सीख जाते हैं तो आपको समझ आता है कि कुछ तो है जो लॉजिक्स के ऊपर चलता है। तब आप कहते हैं जब तक साधना होती रही होगा वही जो होगा सही। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और इतना गहरा ज्ञान आपने दिया है, आज तक हम लोगों ने इन सब चीज़ों के बारे में सोचा ही नहीं। मैं जो रिलेट कर पा रही हूँ यहाँ पे, कितनी सादगी से आपने समझाया कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है, कितनी सादगी से समझाया कि यूनिवर्सल कनेक्शन क्या होता है। हम बस क्या करते हैं, शब्दों का हेर-फेर, और फिर सोचते हैं कि ऐसा कुछ है जो हमें यहाँ जाके सीखने के लिए मिल सकता है, जिसको हम पहले ज़माने में शुरुआत से ही प्रैक्टिस करते आए थे। यानी शास्त्रों में ही सारा ज्ञान छुपा है, और शास्त्र छोड़ के डिजिटल नोट्स और डिजिटल वीडियोस पे हम लोग फोकस हो गए हैं। तो बहुत अच्छी बात कही आपने। अब जैसे आपने ये सब बताया कि इसको किस समय करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, क्या शुरुआत करनी चाहिए। तो किस तरीके के परेशानियों में हमें सबसे पहले जो है मंत्र साधना काम आती है, या फिर मैं ये बोलूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं आजकल, बोलूँगी लक्ष्मी जी के पीछे भागते हैं, ठीक है? कि हम इस तरीके से पैसे अर्न करें, उस तरीके से पैसे अर्न करें। एंड मुझे लगता है कि शायद सारा जो यूनिवर्सल कनेक्शन और मैनिफेस्टेशन लोग सोचते हैं, उसके पीछे कहीं न कहीं एक छुपा हुआ राज यही होता है कि हम कुछ पैसा कमाना जो है उसके लिए भगवान को बता पाएँ। मतलब मंदिर में जाके भी जो हम पूजा पाठ करते हैं, उसके पीछे हमारा कोई ना कोई पर्पस कहीं न कहीं तो छुपा होता है। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मंत्र साधना, सवाल थोड़ा सा मैं उसको बदलना चाहूँगा। हाँ। कौन से परेशानियों में इस्तेमाल करे की जगह है कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल करें। कहाँ-कहाँ और जब इस्तेमाल आप करें? ये सवाल पूछते हैं तो मंत्र साधना का जवाब होता है, जहाँ जहाँ आप नहीं सोच सकते वहाँ वहाँ भी मंत्र स्थापना ही लगा दीजिए। हुँ, यदि आपका फ़ोन गर्म हो गया है और फ़ोन काम नहीं कर रहा है, आप डिजिटल कोच हैं, आपको सुन के हंसी आएगी, लेकिन आपसे ज़्यादा लॉजिकल मैं हुआ करता था एक समय पर। लेकिन जब व्हाट्सएप बैन हो जाता है कोचेस का, एपीआई बैन हो जाता है, वेबिनार में लोग लाने होते हैं बहुत सारे, तब फेसबुक बैन कर देता है तो 2 दिन तक नहीं चलेगा, तो आपका शो अप नीचे चला जाएगा। ऐसा ही है। यस, हमने सिर्फ साधना करके 3 बार अपना मंत्र बोला है। हमारे पास आज भी फेसबुक के तरफ से अपॉलजी का ईमेल है कि हमने गलती से आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया था, आपकी सारी रेटिंग सब कुछ ठीक है, हम उसको अभी तुरंत एक्टिवेट कर रहे हैं। बिना फेस के वेबिनार्स चलाए हैं साधना को प्रूव करने के लिए कि मेरा फेस नहीं है, सिर्फ मेरी आवाज़ और पीपीटी है, उस पर हमारे पास 40% का कन्वर्जन रेट है। हमारे पास हाईएस्ट कन्वर्जन रेट सिर्फ साधना के बेसिस पर 63% का कन्वर्जन रेट है, जो अभी तक कोई कोच का नहीं। क्योंकि कारण यही है कि हम कोच नहीं हैं, हम वो दीक्षित शिष्य, वो दास हैं उनके, जिनको ये चीज़ हर एक घर तक पहुंचानी है। जब हम इस बात को समझ जाते हैं, मैं इस पूरे शो में अपने बारे में बात ही नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि जो सुन रहा है उसके मन में एक भाव आ जाए कि एक माला लेके करके तो देखें।
क्या पता कुछ जादू हो जाए। जहां आपने माता लक्ष्मी की बात की, तो माता लक्ष्मी को समझना पड़ेगा पहले। हम माता लक्ष्मी को समझना नहीं चाहते, हम घर की औरत को नहीं समझना चाहते। वो खाना बनाने से पहले 3 बार पूछती है कि कौन सी सब्जी बनाऊं, लेकिन घर में गाड़ी लाने से पहले उससे एक बार नहीं पूछा चला जाता कि कौन सी गाड़ी लाऊं। ऐसा क्यों? तो माता लक्ष्मी को यदि अर्जित करना है तो सबसे पहले आपको विष्णु बनना पड़ेगा। यदि आपके अंदर वो भाव नहीं है, वो गुण नहीं है, वो आचरण नहीं है, और आप चाहते हैं कि आपके पास लक्ष्मी आकर के बैठे, तो वो संभव नहीं है। आधे से ज्यादा फीमेल्स को नहीं मालूम कि वो वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। किसको एम्पावर करेंगे? जो ऑलरेडी एम्पावर्ड है, जिसके अंदर शक्ति पहले से ही पुरुष से ज्यादा है। वो क्यों भगवान विष्णु के चरणों में बैठी है? क्योंकि उन्हें मालूम है कि जिस दिन भगवान विष्णु भी गिरे तो वो अपने चरणों तक ही गिर सकते हैं, इतना ही नीचे गिरेंगे। लेकिन वहां उठाने के लिए उनकी लक्ष्मी बैठी है, क्योंकि उसके अंदर ही वो शक्ति है जो विष्णु को भी उठा दे। सही बात। तो वो उनके पैरों में नहीं बैठी है, लेकिन उन्हें इस बात का बोध है कि मेरे अंदर ही वो क्षमता है जो इन्हें भी सहारा दे सकती है। जब ये समझ आ जाता है, तो आज के युग में जो हो रहा है कि शादियां, कि लड़के के पास पैसा होना चाहिए, माता लक्ष्मी के पास भगवान विष्णु से ज्यादा पैसा है। तो हम एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं कि आज फीमेल्स खुद पढ़ लिख लें, खुद पैसा कमा रही हैं, तो उन्हें लड़कों की तो क्या ही जरूरत है। लेकिन जीवन में उन्हें जो स्थिरता मिलेगी, जो स्ट्रेंथ मिलेगी, जो स्टेबिलिटी मिलेगी, वो पुरुष से ही आएगी। जी बिल्कुल। और फीमेल कभी भी खुद के लिए एक चीज नहीं मांगती है। वो जो भी मांगती है संसार सृष्टि के लिए मांगती है। जब आप काल भैरव तंत्र पढ़ते हैं या फिर शिव स्तोत्रम पढ़ते हैं, तो वहां पर माता पार्वती ने जब जब भगवान शिव से प्रेम मांगा, तो वो खुद के लिए नहीं, संसार के लिए था। कितनी कि आप अपना तांडव रोक दें, आप अपना प्रकोप ना दिखाएं, आप इस चीज को भस्म ना करें। वो सारी चीजें हर बार उन्होंने रोका तो दूसरों के लिए। तो हर एक फीमेल, हर एक लक्ष्मी यही होती है कि उन्हें आपके लिए कुछ चाहिए ही नहीं। यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है 6 नीड्स ऑफ ह्यूमन, कि यदि आप जीवन में 6 इच्छाएं देखें इंसान की, तो 6 इच्छाओं में सबसे पहला है नीड फॉर सर्टेनिटी, कि हमें हर चीज सर्टेन चाहिए, निर्धारित चाहिए। जॉब में स्टेबिलिटी कब आ जाएगी? मुझे ग्रोथ कब तक मिल जाएगी? मेरा काम कब तक चल जाएगा? मेरी शादी कब तक हो जाएगी? बच्चे कब तक हो जाएंगे? इनका इस स्कूल में एडमिशन हो जाएगा क्या? मैं सैलरी पे कब तक पहुंच जाऊंगा? मेरा मंथली रेवेन्यू इतना कब हो जाएगा? यानी कि सबसे पहली नीड जो है, गाड़ी का पहला गियर माने तो वो है कि निर्धारितता चाहिए जीवन में। बिल्कुल। वहां से जब व्यक्ति थोड़ा ऊपर उठता है, तो उसे लगता है कि ये बिल्कुल एक जैसा जीवन चल रहा है, तो कुछ अलग चाहिए, बदलाव चाहिए। तो आज आप एक कोर्स सीखते हैं, दूसरा सीखते हैं, तीसरा सीखते हैं, चौथा सीखते हैं, पांचवा सीखते हैं, सीखते ही चले जाते हैं। ऐसा एक पॉडकास्ट, 2 पॉडकास्ट, 3, 4, 5 देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं ये करे वो करे। ये आपको सुकून देता है कुछ और करने का, इसलिए 30 सेकंड की रील आपको बहुत सुकून देती है। इसे साइंटिफिक लैंग्वेज में डोपामिन सिक्रीशन कहते हैं। हम्म, क्यों ऐसा? कारण हमारी नीड फॉर अनसर्टेनिटी फुलफिल करने के लिए। मनुष्य बहुत जल्दी बोर होता है। वहां से तीसरा आता है नीड फॉर सिग्निफिकेंस। बचपन में हम में से किसी को भी कभी, किसी को हो सकता है माता पिता का प्रेम नहीं मिला, किसी को हो सकता है वो ध्यान नहीं मिला, किसी को वो केयर नहीं मिली, किसी को वो शाबाशी नहीं मिली। तो 7 साल के बच्चे के दिमाग में एक स्क्रिप्ट चली गई दिमाग में, कि मेरे अंदर ही कोई कमी है, जिस कारण से मेरे माता पिता, मेरे दोस्त, मेरे आसपास, मेरे भाई बहन मुझ पे ध्यान नहीं दे रहे। तो उसके पास 2 रिस्पॉन्स थे। एक, या तो वो लड़ झगड़ करके कहे कि नहीं मुझे तो अटेंशन चाहिए। तो कुछ बच्चे होते थे ऐसे, जिनको अगर आप खिचड़ी खाना कितना ही सिखा दें, तो वो चम्मच उठा करके फेंक देते ताकि सारा ध्यान उन पे आ जाए। वो आज किसी के सास ससुर बन गए हैं, तो उनके घर में चिक चिक थोड़ी ज्यादा है। लेकिन यदि हम ध्यान से साधना और साधक की नजरों से देखें, तो वो 7 साल का बच्चा है जो कह रहा है कि मुझे तुम प्यार कैसे नहीं करोगे, मैं सारा ध्यान अपने ऊपर लेकर के आऊंगा बार बार।
दूसरा था जिसने सोचा कि शायद मेरे अंदर ही कोई कमी है, तो उसने सोचा मैं खुद को बेहतर बना लूं तो शायद मैं दुनिया जीत लूंगा, मुझे वो प्यार मिल जाएगा। हम्म, उसने काम चालू किया तो स्कूल में बनना टॉपर, घर में बना रिस्पॉन्सिबल, अपनी ज़रूरतें हमेशा कम रखी, खुद को लो मेंटेनेंस कहा, नहीं मेरे तो कोई खर्चे ही नहीं है, हमेशा दूसरों के लिए पहले सोचा, और उसके बावजूद जीवन में परेशान। कारण इन दोनों ही व्यक्तियों को प्यार मांगना नहीं आता मुंह से कह करके, और बचपन में मांग लेते थे। बड़े हो गए तो अब ईगो आ गया एक, कैसे कहें। अब ये समझे अगर इस बात को कि पेरेंट्स से जो प्यार नहीं मिला, वो जो प्रेम नहीं मिला, वो क्यों? क्योंकि वो भी अपना प्रेम ढूंढ रहे थे, लेकिन इनडायरेक्टली उन्हें लगा कि यदि ऐसा बड़ा करेंगे, ऐसे ध्यान रखेंगे, कम पैम्पर करेंगे, तो ये बच्चा अच्छा करेगा जीवन में। तो सबसे पहले तो जड़ों में जाना जरूरी है कि अपने माता पिता को गले लगा करके कहें कि मुझे आपसे बहुत प्रेम है। कि आप, आज जाकर के मुझे समझ में आया कि इतने सालों से आपने मेरे साथ जो किया वो सिर्फ इसलिए कि आपको प्रेम महसूस हो सके। हर एक व्यक्ति जीवन में जो कुछ कर रहा है वो सिर्फ इसलिए कि उसे प्रेम महसूस हो सके। वहां सृष्टि का नियम आता है कि आपको जीवन में जो भी चाहिए उसको पाने का सिर्फ एकमात्र जरिया है कि आप उसे दूसरों को देने लग जाएं। अब आपको यदि इस इम्पोर्टेंस वाले जाल से निकल करके बाहर आना है, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? प्रेम भाव में। उसके लिए करना क्या पड़ेगा? प्रेम मांगना छोड़ करके प्रेम देना चालू करना पड़ेगा, जैसे भी जिसको भी जितना दे सकते हैं। क्या होगा? ये सारे व्यक्ति वही हैं 7 साल के, सब वहीं अटके पड़े हैं, उसी स्क्रिप्ट से इनका दिमाग चल रहा है आज भी। इनको प्यार मिलते ही ये पिघल जाते हैं। तो कोई आपके इसमें आकर के कमेंट में यदि कुछ उल्टा सीधा लिखे, समझिएगा आंखें बंद, चेहरे पे मुस्कान, बीमार है बेचारा, प्यार की जरूरत है। बिल्कुल सही। कई सालों पहले मैंने ये कॉन्सेप्ट सुना था, जब मेरा भाई इस चीज के बारे में रिसर्च कर रहा था कि क्यों हम इतना ज्यादा नाराज रहते हैं अपने अपनों से। तब उसने मुझे ये बात बताई थी कि जब भी तुम्हें लगे ना कि तुम्हारे आसपास कोई नाराज है, गुस्सा है या कुछ गलत कह रहा है, तो हमेशा यही, और वही बात आज आपने कही, तो बस वही मुझे अचानक याद आ गया। और कितनी सादगी से आपने सारी प्रॉब्लम्स को पॉइंट आउट किया जो हमारी लाइफ में चल रही है, कि हम अंदर से फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, एंग्री फील करते हैं, हम दूसरों के बारे में जो सोचते हैं, कहीं ना कहीं ये सब कुछ जो है खुद से शुरू होता है और खुद पे ही खत्म होता है, राइट। तो हम कैसे एक बैलेंस बनाएं, क्योंकि हमें खुद को भी बदलना है, और हमारे एनवायरनमेंट में जो लोग हैं उनको समझ के कि वो ऐसे ही हैं, वो नहीं बदलेंगे, उनके साथ में इस जीवन को भी आगे व्यतीत करना है और खुद को ग्रो भी करना है, तो हम कैसे एक बैलेंस बनाएं। बैलेंस की बात जहां आएगी जहां आप लॉजिक लगाएंगे, जहां हम लॉजिक। लॉजिक ही खत्म कर दें और प्रेम भाव में समर्पण आ जाए। मुझसे कोई कुछ कहता है, अक्सर लोग इरिटेट भी हो जाते हैं, उसका कारण ये है कि वो कहते हैं कि आप हर चीज़ का यही जवाब देते हो। मैं हर चीज़ में कहता हूँ जैसे प्रभु श्री राम की मर्जी। कारण उसका ये है कि वो प्रेम भाव इतना ज़्यादा है कि उस प्रेम भाव में पूर्ण समर्पण है, कि भरोसा है। यदि उसमें मैं आ गया कि नहीं मैं सोचूंगा, मैं दिमाग लगाऊंगा, आपने कहा हम बैलेंस कैसे मैं बैलेंस बिठाने वाला हूं कौन? मेरा जन्म कहाँ हुआ मेरे हाथों में नहीं था, मैं कब चला जाऊंगा मेरे हाथों में नहीं है। डॉक्टर ने 15 दिन दिए थे तो भी जिंदा होकर के साधना सिखा रहा हूँ। लोगों ने कहा इन सब से पैसे नहीं आएंगे, इतने पढ़े लिखे परिवार से हो, जहां जितना पूरे खानदान में किसी का पैकेज नहीं है, 45 दिन में हमें 1 करोड़ रुपए आ गए। तो उसके लिए अवार्ड्स मिल गए, समाज में नाम हो गया। तो जैसे ही हमें ये समझ में आता है कि उस प्रेम भाव में यदि हम समर्पण में आ जाए और गुरु शिष्य परंपरा में आकर के उस साधना को सीख ले, तो हमें उसके बाद तो सिर्फ ये समझ जाना है। इसका बहुत साधारण सा मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपने कभी चेस खेला है? बचपन में चेस बोर्ड आता था बच्चों का। दो तरीके के आते हैं, एक खाली आता है और एक मैग्नेट वाला आता है। मैग्नेट वाले में एक एक सिपाही को चलने में बड़ा जोर लगता है, क्योंकि उसके नीचे मैग्नेट चुंबक से वो चिपके रहते हैं। यस। साधना के बिना और जीवन में गुरु शिष्य परंपरा को सीखे बिना हमारा भी कुछ ऐसा ही हाल है। हम जहां हैं वहां से बहुत चिपके हुए हैं,
ये ना जानते हुए कि हमें चलाने वाला कोई और ही है। हम चाहे जितने चिपके रहे, चाहे जितना सोच ले कि अरे सामने दिख रहा है ये तो अब मरने वाले हैं, अब तो हालत खराब होने वाली है, ईएमआई कहाँ से जाएगी, लोन कहाँ से भरेंगे, पैसे कहाँ से आएंगे, वो आपको मालूम ही नहीं है कि अगली चाल में मात देने वाला है, आप पूरा खेल जीतने वाले हैं। तो इससे अच्छा है कि अपने चुंबक अगर नीचे से हटा दें और समर्पण भाव में खुद को खुला छोड़ दें कि हाँ मैं आपका दास, अब आप चलाओ जैसे चलाना है। तो हमेशा आप देखेंगे कि जीत आपकी ही हो रही है। इन बातों को हमारे रामायण महाभारत में बहुत अच्छे से समझाया गया, लेकिन हम समझे तो बात है कि यदि आप देखें तो भगवान श्री राम ने, हम आज छोटा सा कुछ काम नहीं चलता है, वेबिनार नहीं चलता है, कुछ नहीं चलता है, शो वो पॉडकास्ट वगैरह नहीं चला अगर, तो हम बहुत चिंतित हो जाते हैं। भगवान श्री राम राजा थे जिनसे उनकी राज्य को छीन लिया गया था और वन में डाल दिया धर्मपत्नी और भाई के साथ। उसके बावजूद उन्होंने क्या किया, चेहरे पे मुस्कान के साथ अपनी साधना करते रहे। साधना करते रहे तो हमें ये मालूम होता है कि जीवन में आपको जो भी व्यक्ति मिल रहा है साधना करने के बाद, उसे आपकी ज़रूरत है और आपको उस व्यक्ति की ज़रूरत है, वरना आप किसी और से मिल नहीं सकते हैं। इस साधक के साथ जो भी हो रहा है, वो जो भी बोल रहा है, जो भी देख रहा है, वो सब कुछ उसके इष्ट की लीला है। इस कारण से उसको दिमाग लगाना ही कहाँ है। भगवान श्री हनुमान खुद को एक साधारण वानर मानते थे। वानर और बंदर में फर्क होता है। वानर वो है जो वन में रहता हो, वन में रहने वाला नर। वो बंदर कभी भी नहीं थे। वानरों की सेवा सेना कही गई है हमेशा। लेकिन वो वानर आकर के पहली बार समझते हैं कि मैं तो पवन पुत्र हनुमान हूँ। कहाँ से? समर्पण भाव। कभी उन्होंने क्रेडिट नहीं लिया खुद का, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था सिग्निफिकेंस से काम नहीं चलेगा, प्रेम से चलेगा। तो उन्होंने सब कुछ सौंप दिया कि मैं तो ये होता ही नहीं यदि प्रभु श्री राम नहीं होते। प्रभु श्री राम कहते मेरी धर्म पत्नी को मैं अपनी वधु को ढूंढ नहीं पाता यदि तुम नहीं होते। लेकिन ये सारा जो खेल है हम भूल क्यों गए हैं? क्योंकि इंद्रजीत थे रावण के पुत्र, जिन्होंने इंद्र को हराया और उनका नाम इंद्रजीत बना। मेघनाथ उनका असली नाम था। लेकिन इंद्रजीत ने चाहा क्या कि मैं एक इंद्रजाल रच दूं। इंद्रजाल के ऊपर काला जादू की किताबें देखी होंगी आपने बचपन में, 20-20, 25-25 रुपए की आती थी उस समय पर। इंद्रजाल उन्होंने ऐसा बनाया कि लोग का जो देखने का नजरिया है वो बदल जाए, कि उनके मन से भगवान तो दूर हो जाए और उनके पिता जो रावण है वो उनके अंदर स्वरूप में बच जाए। कैसे? रावण ने कहा मुझ जैसा प्रकांड पंडित ना कोई, काल को भी जिसने पाए से बांधा वो रावण हूं मैं। तो वो क्या है? सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस। तो जब जब आप कहते हैं मैं ये कोच, मैंने ये सीख लिया, मुझे आ गया, मैंने ये अचीव कर लिया, मैंने इतना इतना ये किया है, हम कभी भी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, हम रावण जैसे सुनाई दे रहे हैं। इंद्रजीत ने ये इस तरीके से धारणा बनाई कि भगवान तो आपसे ऊपर है। तो भगवान को सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस दिलवा दिया। तो जैसे ही इंपॉर्टेंस आता है, हमने किसी को स्टेज पे बिठा दिया तो हमारे और उनके बीच अंतर हो गया। तो हमारे पिता बन गए, परम पिता परमेश्वर। तब वो हमारे दिल में रहने की जगह हमारे दिलों से बाहर रहने लग गए। इसलिए जब भी हम भगवान की बात करते हैं, हाथ ऊपर चला जाता है कि वो तो कहीं ऊपर है और रावण वो तो मन में है। क्योंकि जब जब मैंने कुछ किया, मुझे आता है, मुझे पता है, मैंने किया, मैंने करवाया, मेरे कारण, मुझ जैसा प्रकांड पंडित ना कोई, काल को भी जिसने पाए से बांधा वो रावण हूं मैं। बिल्कुल सही। बहुत गहरी बात कही है। तो जब हम रावण संहिता के अनुसार और वाल्मीकि रामायण को पढ़ते हैं तो वहां से रावण से पूछा गया कि आप तो भगवान शिव के भक्त, तो फिर आपने ये शत्रुता क्यों की? कहते क्योंकि मैं इतना प्रकांड पंडित बनकर के इतना ज्यादा मैंने ज्ञान अर्जित कर लिया कि मैं इस ज्ञान से मुक्ति चाहता हूँ, मुझे शांति चाहिए। इसलिए मैंने देखा कि मेरे जो, मैं जिनका प्रिय भक्त हूँ महादेव, उनका रूप तो हनुमान बन के आपका सेवक बना हुआ है।
तो भगवान श्री राम कहते हैं तो ये तो तुम मुझसे मित्रता करके भी कर सकते थे। कहते यदि मैं आपसे मित्रता करता, आप अपने ज्ञान रूपी सागर से मुझे भर देते, और वो मेरे पास पहले ही बहुत है। मुझे उस ज्ञान से मुक्ति चाहिए थी, इसलिए मैंने आपसे शत्रुता की, ताकि मैं चाहता था कि नारायण स्वयं आकर के मेरा वध करें। क्योंकि मैं समझ गया था कि मैं चाहे जितना अमृत पी लूं, मैं मृत्यु के ऊपर जीत नहीं पा सकता। तो जो मैंने जीता, मैंने सिर्फ एक चीज जीती, मृत्यु के ऊपर भय। और इस कारण से मैं सारे देवताओं को हरा पाया। तो आप देखेंगे देवताओं के आशीर्वाद में और उनके यहाँ के आशीर्वाद में सिर्फ एक फर्क है। देवताओं को हमेशा कहा गया विजयी भव, लेकिन राक्षसों को हमेशा कहा गया निर्भय भव। जिसको आपने विजयी भव कहा, उसे जीतने का डर, हारने का डर, डर है उसके मन में जो उसे वीक बनाता है। लेकिन जब हम साधना सीखते हैं, समर्पण भाव सीखते हैं, तो हमारे पास सिर्फ एक चीज है, निर्भय भव। वो है ना, करने वाला कोई और, कराने वाला कोई और। तो ऐसे जब हम गहरे दर्शन शास्त्र को पढ़ते हैं, छठ दर्शन को पढ़ते हैं, दार्शनिक दर्शन है, नैतिक दर्शन है, तो जीवन को देखने का हमारा नजरिया बदलता है। तब हम साधक बनते हैं, साधक के आचरण में आते हैं, कहते हैं हम अपना काम करते हैं, बाकी तो। बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे शब्द नहीं मिल रहे, इतनी गहरी और ज़रूरी बातें आज आपने सबको समझाई है, जितने भी अभी हम अब तक शो में जो लोग बने हुए हैं और जो भी आपने समझा है, अगर आप इस चीज़ को डीपली समझेंगे ना, सो गुरुजी जो आज बात कर रहे हैं, वो अपने ऊपर काम करने की कह रहे हैं और अपने अंदर का ये जो राक्षस, यानी जिसे हम रेजिस्टेंस का नाम भी देते हैं कई लोग, उसको ख़त्म करके उस गॉड से, उस यूनिवर्स से कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा ना, तो बाहरी भाव से जो भी हम करते रहते हैं उसमें हमें सफलता नहीं मिलती है। तो आप सभी लोग जो भी ये शो देख रहे हैं उसको अप्लाई कीजिएगा, और कहीं पर भी अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि कोई डाउट है, तो अभी हम गुरुजी से पूछेंगे कि आप उन लोग उनसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो आपको वहाँ बताएँगे। सो अ, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये दिन खत्म ही ना हो और ये वार्तालाप चलता ही रहे, तो काफ़ी मुझे, मैं कहूँ कि मुझे इस शो को होस्ट करने के साथ काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, तो पहले तो उसके लिए धन्यवाद। एंड बट क्योंकि आपका समय भी ज़रूरी है और मैं समझ सकती हूँ कि आपके अपॉइंटमेंट्स भी होंगे, सो जो भी हमें देख रहे हैं, अगर वो आपसे कनेक्ट करना चाहें, इसे और अच्छी तरीके से समझना चाहें कि कैसे मंत्र साधना अपना सकते हैं, तो उसका अगर कोई तरीका है जिस तरीके से वो आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। मैं इंस्टाग्राम पे, मेरी टीम हमेशा एक्टिव रहती है, आप इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। जहाँ भी मैं मिलूंगा, लोग मुझे या तो प्यार से आचार्य जी बुलाते हैं या गुरु जी बुलाते हैं, तो मेरा यूज़र नेम भी वही है, आचार्य.in। ठीक है, तो जैसे गुरुजी ने आपको बताया कि आप उनके इंस्टाग्राम की आईडी पर उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, और सबसे बड़ी चीज़ जो आपको सीखने के लिए मिलेगी, जो मैंने उनके साथ पहले सेशन में सीखी थी, कि कैसे उन्होंने इतने सारे फॉलोवर्स अर्न किए, वो भी इतनी सादगी के साथ में। तो वो भी आपको सीखने के लिए मिलेगा। तो चाहे आप अपने लाइफ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका प्रोफाइल देखें या बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है। सो इसी के साथ में हम इस सेशन को एंड करें उससे पहले आखिरी बार आप कुछ संदेश देना चाहेंगे सभी लोगों को जिन्होंने अभी तक ये शो देखा और जो हमारे साथ बने हुए हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि जीवन बहुत छोटा है बहुत ज़्यादा सीरियस होने के लिए। यदि हम असल जीवन को समझे, तो हमें खुश रहने के लिए क्या चाहिए, यदि खुद से ये सवाल कर लिया जाए, तो खुश रहने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं वैसे। और आप देखेंगे मेरे गलों में ना कुछ है, ना मेरे हाथों में कोई अंगूठिया है, ना कोई तिलक है, क्योंकि वो दिखावा, बाहरी दिखावा है खुद को धार्मिक कहने का, खुद को आध्यात्मिक कहने का। लेकिन अध्यात्म का मतलब है आत्मा का अध्ययन, स्वयं की आत्मा का अध्ययन, कि कोई भी तीसरा व्यक्ति मुझे मेरे बारे में कोई नई चीज ना बता सके। और उसके बाद यदि हमारे पास साधना है, तो उसके बाद और चाहिए क्या? उसके बाद तो मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच। एंड जितनी सिंप्लिसिटी के साथ आपने हमें इतना सारा ज्ञान दिया और इतना कुछ बताया,
मैं अभी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करें। नहीं समझ में आता है तो इनसे कनेक्ट करें, जिससे आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि कैसे मंत्र साधना को अपने जीवन में अपना कर आप अपनी हर परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं, जो मुझे अभी तक समझ में आया है। सो इसी के साथ में हम आज का शो एंड करेंगे, एंड मैं आपको फिर नेक्स्ट स्पीकर के साथ किसी और नेक्स्ट एपिसोड में मिलूंगी। सो विद दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी लाइव टुडे, एंड दोस्त हु आर वाचिंग द रिप्ले, प्लीज शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स फॉर अस सो दैट वी कैन सी दैट। ओके, सो ऑल राइट, थैंक यू सो मच आचार्य जी शो पर आने के लिए, एंड इतना सारा थैंक यू ज्ञान सो देने मच। के लिए थैंक यू सो मच। Okay, so bye everybody. Bye.